اگر رونا ہے نا تو اللہ کی رضا کے لیے رو ہے، اور اگر فکر کرنی ہے نا تو اتباع مصطفیٰ کی کرو. یہ سودا اللہ کہہ رہا تھا بدل لو، ادلا بدلا میرے ساتھ کرو، فنا دے دو بقا لے لو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ وہ پھر جنت میں جو ہوں گے عاجزی والے، دنیا میں عاجزی والے ہوں گے اور آخر میں وہ جنتی ہوں گے. پھر آگے فرق سمجھا رہا ہے اللہ کہ دیکھو یہ جو عاجزی والے ہوتے ہیں نا یہ جنتی ہوتے ہیں اور دنیا میں زاری اور مسکینی میں نظر آتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ کہتا ہے اندھے ہوتے ہیں نا، اندھے ہوتے ہیں، یہی تو فرق ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کا من اندھا ہوتا ہے وہ اکڑ والا ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. اللہ اس آیت کے نقطہ یہ ہے کہ جو جتنا اکڑ والا ہے نا، متکبر ہے، وہ جتنا کہتے ہیں نا حالی پانڈا کھڑکتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر شیطان کا مکر ہے. یہی تو فرق ہے. جو اللہ کہہ رہا ہے جس کا من زندہ ہے جس کا من زندہ ہے نا، جو دیکھنے اور سننے والا ہے، سوچنے اور سمجھنے والا ہے، جو صحیح علم والا ہے نا، وہ تمہیں عاجزی میں نظر آئے گا، وہ ہمیشہ تمہیں زاری میں نظر آئے گا. وہی کوئی دکھ دکھ نہیں ہوئے گی، انہیں کوئی اپنی رکھ رکھ نہیں رکھی ہوئے گی میرا بڑا وہ شو شاہ ہو، میرا بڑا لوگوں کو نظر آئے شان و شوکت. اللہ کہتا ہے جو جتنا صحیح جاننے والا ہوگا نا، جس کے من کے پردے ہٹے ہوئے ہوں گے، وہ اتنا ہی تمہیں مسکینی اور فقیری میں نظر آئے گا، کیونکہ یہی تو اتباع مصطفیٰ. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلانی یونیورسٹی اور فلانا شیخ اور بڑی وہ پہنی ہو انگوٹھیاں اور بڑا وہ سٹائلش نقاب اور بایا ہو تو یہ تو اتنی بڑی عالمہ ہے. جتنا بڑا اس کے اوپر وہ سٹائلش ابایا ہے نا مہنگا سعودی عرب کا، اتنی ہی بڑی وہ عالمہ فاضلہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جتنا اللہ کی نظر میں اللہ کا محبوب ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں اتنا ہی عاجز اور فقیر ہوتا ہے. یہ آنکھوں والے کا اور اندھے کا فرق ہے. جسے قرآن کا نور مل جاتا ہے نا، پھر اسے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جسے قرآن کا نور مل جاتا ہے نا، اسے پھر دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں درجات اور مقامات کی طرف لگ جاتا ہے. یہ آیات کے اندر جو بین السطور اسرار و رموز ہے نا، میں آپ کو وہ سمجھا رہی ہوں. آگے دیکھیں آیت 26 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہری باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی. کیا پہنا ہوا ہے، کیا لگایا ہوا ہے، کیا نظر آ رہے ہو، کہاں کے پڑے ہوئے ہو، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے من پاک اور نیت صاف. اللہ تعبدو، اللہ کہتا ہے اصل بات کیا ہے؟ عبادت کرو تو الا اللہ، صرف اللہ کی. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو مخلصین لہ الدین، خالص مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو. اللہ کو یہ چاہیے، خالصیت چاہیے، اللہ کو رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ چاہیے. اب اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے آج تک بنا جس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ بندہ رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ والا ہے؟ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کہتا ہے مجھے یہ تم سے چاہیے. یہ سرٹیفکیٹ لے کے آنا، میری بارگاہ سے کچھ پانا ہے نا تو پھر رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ والا بن کے آنا، من پاک اور نیت صاف لے کر آنا. میں تمہارے ظاہری سرٹیفکیٹ نہیں دیکھتا، میں تمہارے من کا حال دیکھتا ہوں. من کا حال جس سے ہم خود ہی بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کا ہمارا من ہے. اندھا من ہے ہمارا. من کیا ہے اللہ کی نظر میں؟ شر و دواب ہے. کیا ہے ہم؟ پتہ ہی نہیں. اپنا پتہ ہی نہیں، دوسروں کے حال دیکھتے رہتے ہیں، دوسرا کی کرتا پہ دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنا پتہ ہی نہیں اللہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اور زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے پھر کیا؟ میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. جو من پاک نہیں کرتے، جو نیت صاف نہیں کرتے، جو رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی نہیں گزارتے نا، ان کے لیے خطرہ ہے. کیا؟ عذاب یوم علیم.
یعنی ان کے اعمال جو وہ عبادات کر رہے ہیں نا وہ بھی کھوکھلی پھر ہوتی ہے. ایسی عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا جس کا من پاک اور نیت صاف نہیں ہے. جو رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ میں زندگی نہیں گزارتا نا، اللہ کہتا ہے ان کے اعمال بھی ان کے کام نہیں آنے والے. آگے اللہ تعالیٰ فطرت بتا رہا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں دولت والے امیر کبیر، انہیں اپنی دولت کا ہی ہر وقت نشہ چڑھا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں دنیا کی دولت مل گئی ہے، اب ہم ہر ایک کو ہم ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے لوگ ہیں، سب ہمارے پیچھے چلیں. اللہ کہتا ہے وہ نبیوں پر بھی اعتراض کرتے تھے. اور اعتراض کیا کرتے تھے کہ اللہ بشرم مثلنا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو. یہ اعتراض کے لیے، جھٹلانے کے لیے وہ کہتے تھے. کون؟ امیر لوگ بستیوں کے جب اپنی بستی کے نبی کو جھٹلاتے تھے نا تو اس کو جھٹلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی عام زبان میں وہ کہتے تھے تو ساڑھے ورگئی ہے، عام کیوں ہم تیرے پیچھے چلیں، تیرے ہے کی نہ تیرے پاس مکان نہ تیرے پاس جائیدادیں، تیرے پاس ہے کیا؟ تھوڑے سے غریب لوگ تو نے پیچھے لگائے ہوئے اپنے، اور سمجھ رہا ہے کہ میرے پر اللہ کا بڑا فضل ہے. فضل ہوتا تو تیرے پاس جائیدادیں نہ ہوتی، تیرے پاس مکان نہ ہوتے، تیرے پاس کوٹھیاں نگاریں نہ ہوتی، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ہم تو تیرے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتے تھے فضل تو ہم پہ ہے، مال و دولت تو ہمارے پاس ہے، تمہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے چاند کٹھے کر لیے غریب ماڑے اپنے ورگے، اور کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے. کس بات کا؟ وہ کہہ رہے تھے فضل ہے. ہم تو تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ فضیلت والے تو ہم ہیں، امیر تو ہم ہیں معاشرے میں. ہم تو تمہیں کیا دیکھتے ہیں؟ کاذبین، تم تو جھوٹے ہو. وہ کہتے تھے، نبی کو کہتے تھے تم جھوٹے ہو، کیونکہ اگر تم سچے ہوتے تو تم دکھاتے تو صحیح کہ دیکھو میرے پاس یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے. تم تو حال ہی ہاتھ منگتے بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور چار منگتے پیچھے لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا فضل ہے؟ یہ کیا کہ استغفر اللہ. اور نبی کو کہتے تھے کہ تم کیا ہو؟ الا بشر مثلنا. آج کون کہتا ہے؟ ذرا سوچیں، آج نبی کو بشر کون کہتا ہے؟ اس سے آپ سوچیں ذرا کہ وہاں بھی کس کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کی آنکھیں کھولنے والی آیت ہے کہ نہیں؟ جو نبی کو بشر کہے وہ وہی کر رہا ہے جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے. یعنی کافرانہ روش، وہ کافرانہ روش پر ہے. یہی تو گمراہی ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے، ایسے گمراہوں کے پیچھے لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں حق کا رستہ ہی ہے. دنیا گمراہوں کے پیچھے جاتی ہے. لیکن مجھے یہ پھر قرآن کی آیت دیکھ کے تسلی ہوتی ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اکثر لوگ ہیں ہی گمراہ، اکثر لوگ ہیں ہی نہ شکرے. یہ تو اللہ نے کہا ہوا، تو ہمیں پھر کس بات کا غم ہے؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جب اللہ نے ایک رستہ دکھا دیا ہے، بھئی رحمت کا رستہ بھی ہے، لعنت کا بھی ہے. اگر تم نے رحمت کا راستہ چھوڑ کے لعنت والا لینا ہے تو پھر ہمیں کس بات کا افسوس؟ جاؤ پھر جہاں مرضی جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کھول کے بتا رہا ہے، کہیں اشاروں سے، کہیں نظاروں سے، کہیں سہاروں سے. اب دیکھنے والا سمجھنے والا کوئی ہو تو اسے سمجھ آئے نا. ہم تو یہ آیتیں پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس نبی کو کہا، اس کی قوم نے کہا. حالانکہ اللہ فطرت سمجھا رہا ہے کہ منافقوں کی اور کافروں کی یہ فطرت ہوتی ہے، اور آج بھی ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. آگے اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دلیل پر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ کہتے تھے، وہی اپنی امت کو، قوم کو بتاتے تھے کہ میں رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، مجھ پر اللہ کی رحمت ہے جو کہ تمہیں نظر نہیں آتی. تو جنہیں نظر نہیں آتی وہ پھر نبی کو کیا کہتے تھے کہ تم بشر ہی تو ہو. اب ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھی نا، ان کی تو آنکھیں اندھی تھی، ان کا من تو اندھا تھا. دنیا کے نشے میں، دولت کے نشے میں، مال پرستی کے نشے میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور انہیں نبی کے اوپر نور کا حالہ، اللہ کی رحمت کا حالہ انہیں نظر نہیں آتا تھا. تو یہی تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میرے پاس وہ خزانے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں. کتنی گہری آیت ہے، میں تو اس میں گم ہی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انتہو فامیت، تم اندھے ہو اس سے،
जो खजाने मेरे पास है ना। अब ये पॉइंट नोट करें कि इस बात को भी वो अस्तगफिरुल्लाह वहाबी कहते हैं नबी के पास तो था ही कुछ नहीं, वो तो खुद कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं। ये नहीं वो देखते कि नबी कह रहा है जो मेरे पास है वो तुम्हें नजर नहीं आता, मेरे पास रहमत के खजाने हैं। अब वो जो वहाबी है वो ये बात अगली आयत वाली पकड़ लेते हैं, देखो वो क्या कह रहा है, वो आगे आएगी। तो नबी ये कह रहा था अपनी उम्मत को, नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, कि मेरे पास मैं एक तो रब की दलील पर हूँ, एक तो मैं खुद दलील हूँ, एक तो मैं रब की खुद सरापा दलील हूँ कि तुम सब बुत प्रस्तियां, तुम सब गलत उल्टे सीधे काम कर रहे हो, मैं हक पर खड़ा हूँ। इसका मतलब है मेरी जात भी हक की दलील है और मेरी बात भी हक की दलील है, और मैं तुम्हें जिस तरफ बुला रहा हूँ अल्लाह की जात मैं वो भी हक है। मैं अल्लाह की रहमत के खजानों में हूँ और मैं तुम्हें अल्लाह की रहमत की तरफ बुला रहा हूँ, और मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। वो अपनी कौम को कहते थे कि तुम मुझे क्यों झुटला रहे हो, मैं तुमसे मांगता ही क्या हूँ, मैं ये तो नहीं कहता मेरी जेबें भरो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे कुछ दो, मैं तो तुम्हें दे रहा हूँ, रहमत के खजाने तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें अल्लाह की बख्शिश तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई से बचाना चाहता हूँ। लेकिन क्या वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन ये जो लोग हैं अपने रब, लेकिन वो जो लोग थे क्या थे, वो लोग दर हकीकत जाहिल थे। इसलिए मैं कहती हूँ ना जहालत से निकलो। अब आपको समझ आई नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या थी, तजहलून, जाहिल कौम थी। जाहिल किसे कहते हैं, जो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे और नबी की पैरवी ना करे। तो आप मुझे बताएं हम जाहिल हैं कि नहीं? हम मुहासबा करें ना, एक सेकंड के लिए रुक के जरा सोचें, हम भी जाहिल हैं कि नहीं? क्या हमने सुन्नत शरीयत तरीकत इताअत मोहब्बत और इत्बाए रसूल में जिंदगी गुजारी? नहीं गुजारी। एक सुन्नत पूरी की, उसके बाद 10 चुगलियां इधर उधर की, 10 लगाइयां बुझाइयां इधर की, 10 ऐब बुझाइयां दूसरों की, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर, अपनी छुपा ली दूसरों की बता दी। ये कौन सी सुन्नत है, ये कौन सी शरीयत है, मुझे बताएं। हम क्या है, हम क्या है? आईने में देखो जरा, ये कुरान का आईना खुला हुआ ना, ये कुरान का दर खुला हुआ है। कुरान के दर में, कुरान के आईने में मैं कहती हूँ अपना चेहरा देखो, आपको खुद चीहे मार के ना हम खुद ही डर जाए, हाय मेरी ये शक्ल है, कहीं मैं जाहिल हूँ, कहीं मैं गाफिल हूँ, कहीं मैं मुनाफिक हूँ, कहीं मैं जालिम हूँ, कहीं मैं मुफसिद हूँ, कहीं मैं काजिब हूँ झूठा, कहीं मैं मुजरिम हूँ, मैं क्या हूँ? मेरी कितनी शक्लें हैं, मेरे ऊपर कितने वो कहते ना कालके, कितनी कालक मेरे ऊपर लगी हुई है। मैंने सिबगतुल्लाह तो कहीं है ही नहीं, अल्लाह का रंग तो है ही नहीं, मेरे ऊपर तो सारे रंग ही जिहालत, जुल्मत, गफलत, मुनाफकत के चढ़े हुए। आप समझ रहे? तो यही तो अल्लाह बता रहा है, अल्लाह कह रहा है कि ये अंजाम होता है जाहलों का, जालिमों का, मुनाफिकों का, कि वो आखिर में डुबो दिए जाते हैं, या जल्जले आते हैं, या फिर तबाहियां उनका कदर बनती है। और अगर अल्लाह हमें ये सुना रहा है तो क्यों सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, मुझे बताएं। आप बिला वजह किसी को कोई बात तो नहीं बताते ना, कुछ होता है उसमें तो आप बता रहे होते हैं ना। अगर अल्लाह ये आयतें हमें सुना रहा है, दिखा रहा है, तो क्यों? अल्लाह कह रहा है इसलिए दिखा रहा हूँ कि इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो, जहालत से निकलो, जहालत से निकलो, गफलत से निकलो, जुल्मत से निकलो, मुनाफकत से निकलो, क्योंकि ऐसे लोगों का अंजाम तबाही होता है। हमें है इसकी फिक्र, मुझे बताएं, फिक्र है हमें इसकी कि किस में हम, किस गड़े में हम पड़े हुए हैं? कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है औलादों की फिक्रें, मालों की फिक्रें, जायदादों की फिक्रें, खानदानों की फिक्रें, और ये सारी क्या है? शैतान की मकरें। तो यही तो मैं आपसे कहती हूँ, फना को छोड़ो, बका का सौदा ले लो, अभी भी वक्त है, बका का सौदा ले लो, अपनी बिगड़ी बना लो। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि वही नूह अलैहिस्सलाम को सामने रख के ना, मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, लेकिन अल्लाह बीच में हमें हमारी तरबियत, हमारे हाल की तरबियत, अल्लाह हमारे हाल की तरबियत फरमा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने इस तरह कहा तो आपने क्या कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं, यानी कि मैं तो जो मेरे पास आते हैं मेरी कौम, अगर मैं उनको धुतकार दूं। अब देखें जो उनकी कौम के अमीर लोग थे उन पर भी इतराज करते
और ये भी कहते अगर तुम इन गरीबों को हटाओ ना तो हम अमीर आएंगे, हम अमीर तब आएंगे तुम्हारे पास जब ये गरीब मंगते जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे इनको हटा दूं, ये तो अल्लाह की रजा के लिए आते हैं, ऐसी बात है कि नहीं। जो भी आता है मेरे पास वो हक का तालिब बनकर आता है। मैं कौन होता हूँ किसी को कहूँ कि तुम गरीब माड़े हो कार में जाओ, मैं तो नहीं ऐसा कह सकता। हमने कहा तुम सोचते नहीं हो, मैं तो ऐसा कभी भी कर नहीं सकता। लेकिन वो जो थे उन्हें तो बस यही तो मसला अल्लाह समझा रहा कि जो दौलतमंद होते हैं वो दौलत के नशे और गुरूर में होते हैं। तो फिर आजिज़ी से नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, वला अक़ूलु लकुम इंदी हज़ाइना हज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलकुम वला अक़ूलु लिल्लज़ीना तज़दरी आयुनुकुम। मैं ये तो नहीं तुम्हें कह रहा कि मेरे पास अल्लाह के खजाने, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे पास गैब का इल्म है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों की निस्बत जिन्हें तुम हकीर जान रहे हो कि हकीर जान रही हो, कहता हूँ कि अल्लाह इन्हें हर किस कोई भलाई नहीं देगा, यानी मैं कोई फैसला नहीं कर रहा। अब ये बातें वहां भी पकड़ लेते हैं, आपको पता। हालांकि ये देखें नबी ने इसलिए कही थी कि मेरे पास दुनिया के नहीं अल्लाह की रहमत के खजाने हैं। मेरे पास तो जो अल्लाह ताला मुझे अता फरमाता है, जितना इल्म हिदायत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है वो सब मेरे पास है। लेकिन वो आजिज़ी से ये कहते थे कि मेरा अपना कोई दावा नहीं है, दावा जो भी मैं कर रहा हूँ वो रहमान का है, मेरा नहीं है। अब इससे अगर आप अस्तगफिरुल्लाह लोग ये कहने लग जाए कि नबी तो आम बशर है, हमारी तरह है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। देखो वो खुद कह रहा है, खुद कह रहा है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नबी है इत्तबियु मा यूहा इलैक, नबी सिर्फ वो कहता है जो अल्लाह को पसंद है, और इससे हमें वो समझा रहा होता है कि तुम भी वो करो जो अल्लाह को पसंद है। यानी कि दुनियावी माल के ऊपर नजर ना रखो, दुनिया के तालीम और दुनिया की सर्टिफिकेट पे नजर ना रखो, दुनिया की चीजें और खजानों पे नजर ना रखो, नजर रखो अल्लाह के नूर पर, अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की चाहत और अल्लाह की रिजा पर रखो। लेकिन इसको भी वो लोग नहीं समझते थे। आपने कहा कि अगर मैं दुनिया के मालो मता पे नजर रखूंगा ना तो फिर तो मैं जालिम हो जाऊंगा। इसलिए ना मेरी अपने ऊपर नजर है, ना मेरी तुम्हारे ऊपर नजर है, ना मेरी दुनिया के मालो मता पे नजर है, मेरी किसी चीज पे नजर नहीं है। मेरी नजर अल्लाह की रिजा पर है, मेरी नजर अल्लाह की रहमत पर है, अल्लाह की बख्शिश पर है। अब इस बात पे आप कैसे कह सकते हैं कि नबी ने कुछ पता ही नहीं सी? अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि वो तो अल्लाह के दिए हुए मनसब पर फायज होते हैं, रिसालत के मनसब पर, और वो अल्लाह की रिजा के पैरोकार होते हैं। सिर्फ वो आम यानी शक्ल में शक्लन वो जिस्मानी तौर पर बशर होते हैं, लेकिन अंदर उनके अल्लाह का नूर होता है, अल्लाह की रिजा होती है, अल्लाह की अदा होती है, अल्लाह की वफा होती है, अल्लाह की अता होती है। सुभान अल्लाह। लेकिन जो कौम थी वो जाहल लोगों की यही तो मसला होता है, जाहल लोगों का यही तो मसला होता है, वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, जितना मर्जी उन्हें समझा दो। नूह अलैहिस्सलाम की जैसे कौम थी ना, कितना उन्होंने समझाया, और बल्कि उन्होंने उनकी हर बात को उलट ही लिया। ये होता है कि नहीं? जाहल लोगों से आप जितनी मर्जी मगजमारी कर लो ना, वो बल्कि हर बात को उलट ही लेंगे, फिर आपकी बात से कोई नुक्ता आपके खिलाफ ही निकाल लेंगे। तो उनकी कौम जितना वो नूह अलैहिस्सलाम आजिज़ी करते ना, उतना ही उनकी कौम कहती अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो कोई दिखाओ तो सही, फिर ना कोई दिखाओ, कोई इज़ा भी ले आओ। यानी पहले तो एक तो उनको मानते नहीं थे, फिर उनको हकीर जानते थे, फिर उनका मजाक उड़ाते थे। ये होता है, अल्लाह कह रहा है देखो ये हो चुका है और ये होगा। जो भी हक के रास्ते पर चलेगा या हक की दावत देगा, उसके साथ जाहल लोग ऐसा ही सलूक करेंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये तवक्को ना रखें अगर मैं हक वाला हूँ, अगर मैं अल्लाह का दीन के रास्ते पर चल रहा हूँ, अगर मैं लोगों को अल्लाह की दावत दे रहा हूँ, तो सारे लोग उठ के मुझे सलाम करेंगे, मेरे हाथ चूमेंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। जाहिल लोग हमेशा, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जुबान दराजी करेगी, मुतालबे करेगी, बेअदबी करेगी, गुस्ताही करेगी, बुरा कहेगी। कदर कौन करेगा? वो जो थोड़े से मोमिनीन,
हर नबी के साथ थोड़े से मोमिनीन हुआ करते थे वो। तो उनकी कौम तो मुतालबे करने लग गई है, तो कुछ दिखाओ ना, जैसे हमारे लोगों की फितरत होती है, दिखा तो सही कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी, दिखा तो सही है, दिखा तो सही कहाँ से। आप सोचें यूनिवर्सिटियों की पढ़ाइयाँ 3-4 साल की होती हैं, अल्लाह कहता है मुजाहदे करो 40 साल, वो कहाँ से दिखाएं आप समझ रहे? मुजाहदे आप दिखा नहीं सकते, मंजिलें या रियाजतें आप दिखा नहीं सकते, वो बोलते हैं, वो जुबान से बोलते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा इल्म अता फरमाता है असरार और रमूज वाला, जो सर्टिफिकेट 4-4 साल सर्टिफिकेट वालों के पास वो इल्म नहीं होता। वो तो सतरी इल्म आपको बताते हैं ना, 4 साल सर्टिफिकेट लेके यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां करके, लेकिन जो सदरी इल्म होता है वो मुजाहदे और मंजिलें तय करने वालों के पास होता है, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे जो लोग हैं ना, वो इनकी यही फितरत, दिखाओ दिखाओ, बस दिखावे पे लगे रहते हैं। अच्छा दिखाओ, अगर तुम अल्लाह वाले हो तो तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना, घर भी अच्छा आला हो, गाड़ी भी आला हो, नौकर चाकर हो, ड्राइवर हो, आला नजर आए ना, क्योंकि तुम अल्लाह के महबूब हो। तो अल्लाह कहता है ऐसा नहीं होता, जो जितना मेरे करीब होता है उतना ही वो दुनिया में तुम्हें हकीर नजर आएगा, फकीर नजर आएगा। और फकीरों के पास फिर फकीर ही आते हैं, सी बात है कि नहीं? वो है ना नात, तलब है कुछ अगर तो क्या फकीरों के पास बैठ जा, ऐसी एक नात है ना, बेतलब सवालियों में बैठ जा, ये है वो में बैठ जा, में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों, बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये नहीं कि कुछ माल लेने के लिए या माल देने के लिए, बेतलब सवालियों में बैठ जा। जो रब का मंगता है ना, अगर रब चाहिए तो उस मंगते के पास जाके बैठ जा। तो यही अल्लाह बता रहा है, समझा रहा है कि अल्लाह नबी को, यानी ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं दिखा, हमें दिखा कि क्या सर्टिफिकेट है, क्या तेरे पास है, अगर नहीं तो फिर अपना कोई कहते ना मौजदा दिखा ताकि हम तुझे माने। आज लोग होते हैं ना, करामतें दिखाओ जी, उस बुजुर्ग की क्या करामत है, तुम्हारी क्या पहुंचा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहता है ये जो लोग जो मांगते हैं ना इस तरह की चीजें, असल में वो दुनियादार होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई गवाही चाहिए होती है फिर कहीं जाके, लेकिन वो मन के सच्चे लोग नहीं होते। जो सच्चे लोग होते हैं ना, उन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं होती, उनकी रूह पहचान जाती है। ये पॉइंट नोट करें, उनकी रूहों को पता होता है कि ये हक है। तो जिन्होंने नबी को झुठलाया, अल्लाह क्या समझा रहा है, जो मुतालबे करते थे, जो तरह तरह की बातें करते थे, इतराज करते थे ना, अल्लाह कहता है वो लोग असल में गुमराह हैं, वो खुद गुमराह हैं। तो नबी ने कहा कि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, मैं दिखा भी दूंगा ना, मैं कुछ दिखा भी दूंगा, फिर भी तुम्हें हिदायत मिलने वाली नहीं है। यानी अफसोस है तुम्हारे हाल पर कि तुम इन चीजों में वक्त जाया कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम अपनी आहरत बनाते और रब को मनाते, तुम मेरे साथ मुतालबे और बहस में वक्त जाया कर रहे हो। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि ए हबीब, ये जो लोग हैं, ये जो लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को खुद गाड़ लिया, 35 खुद गाड़ लिया है ना, अगर मैंने इसे गाड़ लिया होता, यानी अल्लाह ताला कह रहा है आप इन्हें कहें कि अगर मैं ऐसा करता तो फिर मुझे कौन बचाता, फिर मुझ पर इसका वबाल भी तो आता ना, लेकिन मैं तो खड़ा अल्लाह के हुक्म पर खड़ा हूँ, खड़ा ही हूँ, अजाब तो तुम पर आएगा। तो अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है? अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है कि आप इनकी बातें सुन के, इनके एतराज सुन के आप घबराए ना, आप अपना दावत और तबलीग का काम जारी रखें, आप रंजीता ना हो। बिमा कानू यफ़अलून, आयत 36, जो कुछ ये कह रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, ये आखिर में अपना ही तबाही, इनकी अपनी ही तबाही होगी, क्योंकि ये मुसलसल नबी को झुठलाकर अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी मोहलत जाया कर रहे हैं। इन्नहुम मुगरकून, वो जरूर गर्क किए जाएंगे। आज ये गर्क है नफ्स परस्ती में, दुनिया परस्ती में, माल परस्ती में।
کل کو یہ اللہ کے عذاب کا جب فیصلہ آ جائے گا نا، پھر یہ اللہ کے عذاب میں غرق کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا۔ اپنا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا مذاق ہی اڑاتی رہی۔ پھر اللہ کہتا ہے جو نبی کا مذاق اڑائے، پھر کیا ہوا؟ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب۔ پھر آپ کو پتہ نا سارا واقعہ، سیلاب آیا، اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم جوڑے رکھ لو، کشتی بنائی، کشتی میں جوڑا جوڑا رکھ لو، اور وَأَهْلَكَ، گھر والے بھی، اللہ نے پہلے کہا تھا گھر والے بھی، وَأَهْلَكَ، گھر والے بھی رکھ لینا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب جوڑا جوڑا رکھ لیے، جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ تو ہوا کیا؟ نوح علیہ السلام نے نا اپنے بیٹے کو پکارا۔ ان کا بیٹا جا کے کھڑا ہو گیا کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ۔ بیٹا تھا۔ دیکھیں آپ ذرا یہ نقطے نوٹ کریں، یہ ہماری تربیت کے نقطے ہیں، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ ذکر، یہ سٹوری ہمیں سنانے کی۔ اللہ یہ سٹوری کس کو سنا رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنے محبوب کو سنا رہا ہے کہ آپ نے غم نہیں کرنا، کہ آپ کے خاندان رشتے دار والے آپ کے دشمن ہیں نا، آپ نے غم نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں یہ ہوتا آیا ہے، یہ ہوتا ہے حق والوں کے ساتھ۔ دیکھیں ان کا بیٹا تھا، اپنے بیٹے کو پکارا انہوں نے شفقت پدری سے، مغلوب ہو کر پکارا اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بلا تکن مع الکافرین، نہ ہونا کافروں کے ساتھ۔ آخر تک وہ پکارتے رہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، آخر تک پکارتے رہے، پہلے سمجھاتے رہے پھر بھی نہ مانا، پھر آخر میں بھی پکارا۔ تو بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، الا جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ یہ دیکھیں آپ ذرا، جو ظاہر دیکھتے ہیں نا دنیا کا، وہ سمجھتے ہیں میرا مال مجھے بچا لے گا۔ جو مال پرست ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں میرا مال مجھے بچا لے گا، میری اولاد مجھے بچا لے گی۔ تو یہی تو ان کا بیٹا سمجھ رہا تھا، یہ اونچا پہاڑ ہے نا، یہ اونچا پہاڑ مجھے آج بچا لے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کچھ بھی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، مگر صرف اسے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی ان کی گفتگو جاری تھی کہ ان کے درمیان ایک بڑی موج حائل ہو گئی، کیونکہ اللہ نے یہ دکھانا تھا کہ بچے گا وہ جسے اللہ بچائے گا، وہ نہیں بچے گا جسے کوئی بچانے کی کوشش کرے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو خود نہیں بچایا نا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اس کو نبی بھی نہ بچا سکا، بھلے وہ اس کی اولاد ہی تھی، نبی بھی اس کو بچا نہیں سکا۔ ہمارے لیے اس میں پوائنٹ ہے، دیکھیں بڑے نقطے ہیں جو آپ خود سوچیں اس میں کیا نقطے ہیں، کہ ہمیں اولاد کا غم نہیں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی سے زیادہ کس کو تڑپ ہو سکتی ہے کہ میری اولاد ہدایت پر ہو؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نبی سے زیادہ کس کو ہوگی کہ میری اولاد جنت میں جائے، میرے ساتھ جائے، میرا شان، میرا مرتبہ میری اولاد میرے ساتھ پائے؟ تو انہیں بھی تڑپ تھی، لیکن جب بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ یہ پہاڑ مجھے بچائے گا، یہ پیسہ مجھے بچائے گا، جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے یہ دنیا مجھے بچائے گی، یہ خاندان مجھے بچائے گا، تو پھر اسے کسی نے بھی، کوئی بھی اس کو بچا نہ سکا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جب سفینہ نوح کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنا پانی نگلنے، اور آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا، اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اللہ کی قضا، یہ دیکھیں نا، یہ ہے لفظ وغید الماء وقضی الامر، قضا واقعہ ہو گئی، قضا واقعہ ہو گئی۔ اللہ کی قضا واقعہ ہوتی ہے پھر نافرمانوں پر۔ تو جب قضا واقعہ ہو گئی تو پھر ہوا کیا؟ وکیلا بعدا لقوم الظالمین، ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا در پکڑنے کی بجائے چیزوں کو پکڑے۔ اس نے پہاڑ کو پکڑا تھا نا، پیسوں کو پکڑے، اولاد کو پکڑے، دنیا کو پکڑے،
खानदान को पकड़े, अल्लाह का दान ना पकड़ा। तो जिसने अल्लाह का दान नहीं पकड़ा ना, वो उन्हीं के साथ होगा, लिकौमी ज़ालिमीन, और उसका अंजाम वही होगा जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का हुआ था। और नूह अलैहिस्सलाम देखें, बाप थे लेकिन अल्लाह के नबी भी तो थे ना। फिर उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह से पहले ये इल्तिजा की, या अल्लाह पहले तो तूने कहा था मुझे कि जोड़ा जोड़ा रख ले और अपने घर वाले भी रख ले, किश्ती में बच जाएंगे। तो अब क्या हुआ? तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने क्या कहा उनसे, काला रब्बी फ़काला रब्बी इन्ना बनी मिन अहली, या अल्लाह ये तो मेरा जो बेटा है। उन्होंने कहा कि या अल्लाह ये तो मेरा अहल ही था ना, मेरा बेटा, तेरा तो वादा था, वान वान वादा कल हक, तेरा तो वादा था कि तू मेरे अहल को बचा लेगा। यानी वो ये देख रहे थे कि मेरा बेटा मेरा खून, जैसे हमारी सोच होती है, मेरा बेटा मेरा खून, मेरी औलाद, ये मेरे अहल में आते हैं। तो अल्लाह ताला उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अंता अहकमुल हाकिमीन, बेशक तू बहुत सच्चा और हाकिम है। पर ये हुआ क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, अल्लाह ताला ने क्या कहा? ये अल्फाज याद रखें, मैं कहती हूँ आपके याद रखने के अल्फाज हैं। अल्लाह ने क्या कहा? लैसा मिन अहलिक, वो नहीं था तेरा अहल। अहल का मतलब क्या होता है? जो तेरी तरह का हो, जो तेरे जैसा हो, जो तेरे रास्ते पर हो, जो तेरे साथ हो, वो तेरा अहल है। आप समझ रहे? तो अहल कोई भी हो सकता है। अहल वो होता है जो साथ चले, ये नहीं कि जिसको पैदा किया है वही अहल है। अल्लाह कहता है लैसा मिन अहलिक, वो नहीं था तेरे अहल में शामिल। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उनके उसके जो अमाल थे वो गैरुन सालिह थे, वो गैरुन सालिह थे। ये पॉइंट नोट करें आप, उसके अमल अच्छे ना थे। फला तसअलुन मा लैसा लका बिही इल्म, ना सवाल करो ना वो तुम मुझसे जिसका तुम्हें पता नहीं। तुम तो समझ रहे थे जैसे हम समझते हैं, मरते हैं हम, है ना। अल्लाह कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता ना, मुझे पता है कि कौन तेरे साथ होगा। जो तेरे साथ तेरे जैसे अमल करेगा वही तेरा अहल होगा। तो फिर जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये सुना, तो ये अल्लाह ताला की ये बात सुनी, अल्लाह कहता है कि ये अन तकूना मिनल जाहिलीन, क्या तुमने मेरे से ऐसी बात करनी है, जाहिलों वाली? नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन ही अर्ज किया, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असलका मा लैसा ली बिही इल्म। फौरन ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। ये देखें आप, रुजू करना इसको कहते हैं कि फौरन ही इतराफ कर लेना, या अल्लाह मुझे पता नहीं था। अब व इल्ला तगफिर ली व तरहमनी अकुन मिनल खासिरीन, अगर तूने मुझे, उन्हें ये होने लग गया कि कहीं मैंने अल्लाह की बारगाह में कोई गुस्ताखी और बेअदबी ना कर दी है। हम तो धड़ल्ले से करते हैं, दिन रात करते हैं, ऐ भी नहीं मिलिया, ऐ भी नहीं मिलिया, ऐ भी ना सही होया, ऐ भी नहीं मैंने पसंद आए, ऐ भी क्यों होया, दिन रात करते हैं, बेखबर है। उन्होंने देखे नूह अलैहिस्सलाम ने हल्की सी बात अर्ज की, या अल्लाह ये तेरा ही तो वादा था ना, तेरा ही तो वादा था, तूने तो कहा था कि अपने अहल ले ले, तो मेरा बेटा मेरा अहल नहीं है। डरते डरते कहा। अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हें पता नहीं है कि उसके अमल गैर साले थे, क्यों जाहलों वाली बातें कर रहे हो मेरे साथ? ये भी प्यार मोहब्बत का कहते ना मुकालमा है। क्यों जाहलों वाली, क्यों जाहिल बन रहे हो? तो जो मेरा नहीं वो तेरा कैसे है? ये देखें अल्लाह समझा रहा है। तो हम तो ये बातें समझते नहीं, हम तो मर जाए, हम तो रो जाए, हाय मेरा ते पुत्र है ना, मेरा तो पुत्र है ना, हाय मैं ते हुन उठा किस तरह। हम तो ऐसे ऐसे गुनाह करते हैं, जहालत, जुल्मत, ऐसी ऐसी गफलत, ऐसी ऐसी मुनाफकत, ऐसी ऐसी नाशुक्रियां, पता ही नहीं, और उठ के नमाज पढ़ के तो फिर सो जाते हैं। जहालत में पड़े हुए हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, अल्लाह ने नमाजा मुंह ते मारनिया नहीं जी। यही तो बात है। देखिए उन्होंने हल्की सी बात की तो अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला ने कह रहा है हम तकूना मिनल जाहिलीन, जाहलों वाली बात कर रहे तुम मेरे साथ। वो तो बात कर रहे थे तो डर गए, हमारा तो हाल है जाहलों वाला, तो हम डरते नहीं है, इसीलिए नहीं डरते ना। उनके ऊपर तो जर्रा जहालत का आया तो डर गए, हम तो सरापा जहालत बैठे हुए हैं और मजे से बैठे हुए हैं, और उस पे शिकवे शिकायतें गिले गम दुखड़े दुनिया, मोहब्बतें चाहते हैं दुनिया की,
उन्होंने हल्की सी बेटे की बात की तो डर गए फौरन ही। हम तो दिन रात करते ही ये हैं, ऐ भी मिल जाए, ऐ भी मिल जाए। तो ये हमारे ना थोड़े शऊर जगाने की अल्लाह ताला बातें कर रहा है। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से कहा वतरहमनी अकुन्ना मिनल हासिरीन, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे पे रहम फरमा दे, ये ना हो कि मैं हसारे वालों में से हो जाऊं, कि मेरी इतनी सी बात मौला, मेरी इतनी सी बात, कहीं मेरी इतनी सी बात से तू मेरे से नाराज ना हो जाए। हम तो इतने बड़े बड़े अमल करते हैं, जुबानें इतनी लंबी खोल के इतने शिकवे, इतनी नाफरमानियां करते हैं, और कभी सोचा ही नहीं मैं हसारे वाला हूँ, कभी सोचा ही नहीं मैं हसारे वाला हूँ। हम तो कहते हैं बड़ी आशो इशरत वाला हूँ, सब कुछ तो मिले, अल्लाह सब कुछ मुझे देता है, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ। खुशकिस्मत समझ के खुद ही अपने आप को ना सर्टिफिकेट देंगे ना खुशकिस्मत का, खुद ही हम बैठे हुए हैं। अगर मेरे पास दुनिया का मालो मता है तो मैं खुशकिस्मत हूँ, खुद ही। ना कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि दुनिया का मालो मता हो तो खुशकिस्मत हो, ना कहीं हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि दुनिया का मिल जाए, औलाद मिल जाए तो खुश नसीब हो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बल्कि अल्लाह ताला ये समझा रहा है, अगर औलाद के पीछे जाओगे ना, अगर औलाद के पीछे जाओगे, जरा भी इंच भी जाओगे, इतना भी कहोगे कि ये तो मेरा बेटा था, अल्लाह कहता है तेरा बेटा तो पहले मेरा बंदा है, होश कर, तेरा बेटा बाद चोवे, मेरा बंदा पहले, मुझे तेरे से ज्यादा उसकी फिक्र है। तो तू बोता रो रही है, तो मैं तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाली, तू क्यों अपना टाइम जाया कर रही है? तू अपनी कब्र बचा, अपनी हशर बचा, अपने मान की फिक्र कर, तू क्या बेटे की फिक्र में तो रो के। तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ये जिहालत है। मैं आपको ये पॉइंट रोक के समझा रही हूँ कि सबसे अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज्यादा मोहब्बत ईमान वाले जो करते हैं ना, अल्लाह से करते हैं, और फिर अल्लाह के रसूल से करते हैं, और फिर कुरान से करते हैं, और फिर ईमान की फिक्र करते हैं, फिर खानदान बाद में आता है, और उसके लिए दुआ करते हैं, सिर्फ दुआ करते हैं। मैं आपको बताऊं, खानदान के लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए सिर्फ दुआ करें, गम कभी भी ना करें। अल्लाह ने हर जगह कहा है ना गम करो ना मुतालबे करो, ए होएगा तो मैं इंज करांगी, मेरा पुत्र आएगा तो फिर मैं करांगी। अल्लाह कहता है इस तरह ना करो। आगे अल्लाह ताला क्या समझा, क्योंकि अल्लाह जो चाहे करता है, ऐसी बात है कि नहीं, अल्लाह जो चाहे करे। हम कौन होते हैं कहने वाले कि मैं तो ये किया था, मैं तो बड़ी मेहनत की थी। अब देखें नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, सोच सकते थे कि मेरा बेटा नाफरमान हो? नहीं सोच सकते। हम तो इसी काम में घुल जाते हैं, मैं तो बड़ी मेहनत की, मैं तो बड़ी कोशिश की, फिर भी ना हुआ, फिर भी मेरी किस्मत खराब हुई, फिर भी मेरी लाग ना मेरे काम आई। हम तो यही शिकवे लेंगे बस। ये सारे कहाँ से आते? शैतानी। अगर हमें कुरान की समझ आए ना, तो हम अल्लाह की रिजा और रसूल की अदा की फिक्र में रहें हर दम। तो यही अल्लाह ताला आयतों से हमें समझाता है। और फिर देखें आगे, देखें इतना प्यारा नुक्ता है, मैं कहती हूँ हमारे समझने के लिए। अल्लाह ताला कहता है कीला, जब देखें नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, इस्तगफार किया, अल्लाह से रहम मांगा, अल्लाह ताला से पनाह मांगी, या अल्लाह मुझे हसारे वालों में ना करना, फौरन ही गिड़गिड़ाए, आजजी की, जारी की, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, कीला या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, ए नूह हमारी तरफ से सलामती हो। अल्लाह ने फौरन ही सलामिन, देखिए आज लोग कहते हैं सलाम ना पढ़ो, ये पॉइंट नोट करें, लोग कहते हैं सलाम ना पढ़ो, क्यों कहते हो या नबी सलाम अलैका? तो ये नुक्ता नोट करें, हम इसलिए कहते हैं या नबी सलाम अलैका क्योंकि अल्लाह भी कह रहा है कि भी सलामिन मिन्ना, तुम सलाम हो, तुम पर हमारी तरफ से सलामती हो। तो सलाम भेजना, नबियों पर सलाम पढ़ना तो अल्लाह की सुन्नत है। तो जो इतराज करता है उसको पहले कहे कि जाके ना अल्लाह से लड़ के आए, हमसे ना लड़े। ये आयत देख ले और जाके अल्लाह से लड़े, जुर्रत है ना तो अल्लाह से लड़े जाके, फिर देखे इसके साथ होता क्या। बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका। अब देखिए हमें समझ आ रही है आपको, नबियों पर अल्लाह का सलाम भी होता है और नबी की जात भी बाबरकत होती है। तो इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ
کہ ہمیں جو بھی ملا در مصطفیٰ سے ملا، برکت ملی تو در مصطفیٰ سے، عزت ملی تو در مصطفیٰ سے، رحمت ملی تو در مصطفیٰ سے، ہدایت ملی تو در مصطفیٰ سے، اطاعت ملی تو در مصطفیٰ سے، اللہ کی خشیت ملی تو در مصطفیٰ سے، طہارت ملی تو در مصطفیٰ سے، اللہ کی رضا ملی تو در مصطفیٰ سے، محبت ملی تو در مصطفیٰ سے، جنت ملی تو در مصطفیٰ سے، بخشش ملی تو در مصطفیٰ سے، تو وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ دامن میں ہی میرے سمایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ اسی لیے تو ان کی نسبت ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نوح علیہ السلام کی، اصل میں وہی تو آپ سے سمجھا رہی ہوں کہ نوح علیہ السلام کو نا ایک اللہ تعالیٰ مثال بناتا ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے میرے نبیوں کو ایسے عزت دینی ہے، میرے نبیوں کا یہ مقام ہے، وہ میری بارگاہ سے سلام والے ہوتے ہیں اور برکت والے ہوتے ہیں۔ جو نہ مانے نا، جو سلام کو نہ مانے کہ نبی پہ سلام نہ بھیجو، جو نبی کی ذات کو بابرکت نہ مانے اور اسے عام بشر کہے گا نا، پھر اس کا انجام پتہ کیا ہے؟ منا عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے میں درد والا ساتھ ہوں گا، اس سے ذرا مزہ چکھ نا تو بھی پھر، جو میرے نبیوں کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں یہ 11 پوائنٹ ہے، آپ کو سمجھ آیا اس میں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول کو کہتا ہے کہ آپ صبر سے تلقین کرتے رہیں، صبر کے ساتھ آپ حق کے رستے پر تلقین کرتے رہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، یعنی جو لوگ نبی کی زبان، نبی کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں تو کہ نبی عام استغفر اللہ ہے، اللہ کہتا ہے نبیوں کو اس کی پرواہ نہیں آپ نے کرنی، آپ اللہ کا ذکر جاری رکھیں، آخرت کی فکر جاری رکھیں، اپنے رب کا شکر جاری رکھیں، صبر کے ساتھ، فصبر، صبر کے ساتھ آپ اپنا سفر ہدایت کا جاری رکھیں۔ ان العاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہے ہی ان کی جو آپ کے ساتھ ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہوں گے نا، آخرت ان کے لیے ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا دیکھیں قصہ بتا رہا ہے۔ ہود ہی اس سورہ کا نام بھی ہے۔ اب ہود علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے سورۃ آیت نمبر 50 سے، تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے جس طرح نوح علیہ السلام تھے نا، وہی ان کی تعلیمات تھی، اللہ کی عبادت، وحدانیت کی طرف بلاتے تھے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور وہ کہتے تھے افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کسی مال و دولت کے لیے تمہیں نہیں بلا رہا، مجھے تم سے کوئی کچھ چاہیے نہیں ہے کہ کوئی چیز میرے نام لگا دو، یا میری نظر ہے تمہارے مالوں پر، یا میری تمہاری جیبوں پر نظر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو تمہیں اللہ کی رحمت، نور، ہدایت، خشیت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی بخشش کے قابل ہو جاؤ۔ افلا تعقلون، یہ وہ انداز ہے تیری عقل چ گل نہیں ہوتی جسے ہم کہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر انہوں نے کہا اپنی قوم کو استغفار کرو، توبہ کرو، یا قوم استغفروا، استغفار کرو ربکم۔ یہ آپ دیکھیں نا، یہ دو چیزیں ہیں، ایک استغفار ہے، ایک توبہ ہے۔ پہلے استغفار کرو۔ استغفار کیا ہوتی ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ چھوڑو جو تم کر رہے ہیں۔ آج ہم توبہ تو کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، گناہ پھر واپس جا کے پھر مڑو ہی چیز، پھر مڑو ہی زبانیں، پھر وہی حرکتیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے استغفار کرو، پہلے اپنے آپ کو چھڑاؤ اس گناہ سے جو تم کر رہے ہو نا، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبو الیہ، تمہاری توبہ قبول ہی تب ہوگی جب تم پہلے استغفار کر کے آؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، چاہے جتنے بھی ہوں، اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بڑھا دے گا اور تم مجرم بنتے ہوئے ان سے روگردانی نہ کرنا، یعنی وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم بنتے ہوئے ان سے روگردانی نہ کرنا، یعنی کہ ان کی پرواہ نہ کرنا جو یہ کر رہے ہیں۔ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔
आगे अल्लाह ताला कह रहा है, फिर उनकी फितरत बता रहा है कि ये जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी और जो मुजरिम कौमें होती ना, मुजरिम मुजरमीन, ये देखे ना, ये सारे एक ही कैटेगरी है, बाएं हाथ वाले, ज़ालिमीन, गाफिलीन, जाहिलीन, मुनाफिकीन। ये मैंने यहाँ से सीखा है। ये सारे अंबिया के आप किस्से जब पढ़ते हैं ना, तो एंड पे अल्लाह कहता है मुजरमीन, वो कौम ज़ालिमीन थी, वो जाहिलीन थी, हासरीन थी, तो फिर आखिर में अल्लाह ताला उनको तबाह कर देता है। इनकी फितरत भी एक होती है, ये पॉइंट नोट करें। आज भी है, आज भी ऐसे कौमें, आज भी ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं कि उन्हें हक की तरफ बुलाओ ना, तो वो उल्टा जुबान दराजी, बदतमीजी, गुस्ताही, बेअदबी में आ जाते हैं। क्योंकि यही हाल उन कौमों का था जो हसारे वाली थी, जो अपने नबियों की जुबान दराजी करती थी। तो उनकी नस्लें आज भी हैं, मैं आपको बताऊं, आज भी उनकी नस्लें चल रही हैं और वो वही हरकतें कर रहे हैं जो वो हरकतें किया करते थे। क्या कहते थे नबी को, निशानी लाओ, कोई निशानी दिखाओ ना, अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। तो बल्कि वो कहते थे क्या, उनको कहते थे, अपने नबी को कहते थे, हूद अलैहिस्सलाम को कहते थे, असल में हुआ पता क्या है तुम्हारे साथ, हमारे बुतों ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। हमारे बुत जो है ना, उनमें बड़ी ताकत है, तो तुम्हारा दिमाग फिर गया, इसलिए तुम ना कहते हो कि अल्लाह एक है। इतने ये बुत बैठे हुए, इनके होते हुए हमें क्या जरूरत है कि हम अल्लाह को एक माने, ये हमें कोई कमी है। वो ये कहते थे कि तुम्हारा तो उल्टा दिमाग हो गया हुआ है। आगे अल्लाह में ये समझा रहा है कि फिर उन्होंने क्या कहा था कि तुम कर लो जो करना है, मोहलत तो थोड़ी है, बहुत जल्द ये तुम्हारे बुत और तुम्हारा ये गरूर धरे का धरा रह जाएगा। और अल्लाह अपने नबी को क्या समझा रहा है, और नबी के वसीले से अल्लाह हमें समझा रहा है कि अगर तुम दीन का काम करो, अगर तुम हक के रास्ते पर चलो, लोग तुम्हें बुरा भला कहें तो तुमने क्या करना है, इन्नी तवक्कलतु अल्लाह रब्बी, इन्नी तवक्कलतु अल्लाह। देखिए ये दुआ भी है, ये दुआ भी है कि जब आप हक के रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी कोई बात नहीं मान रहा, घर में खानदान में बच्चे नहीं मान रहे, खानदान नहीं मान रहा, तो आप ये दुआ किया करें, इन्नी तवक्कलतु अल्लाह रब्बी, मैंने अपने रब पर तवक्कुल कर लिया जो मेरा रब है। इन्नी तवक्कलतु अल्लाह रब्बी, बस इतनी, या अल्लाह मैंने तुझ पर तवक्कुल कर लिया। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने रब पर तवक्कुल किया जो मेरा और तुम्हारा रब है, उसके कब्जे में है सब कुछ। यानी तुम्हारे जो दिमाग है ना, तुम्हारे दिमाग चोटी, यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या कहा था कि चोटी से पकड़ा हुआ है, अल्लाह ने हर जानदार को उसकी चोटी से पकड़ा हुआ है। यानी हमारे जो सबके दिमाग है ना, जो जानवर भी हैं, जानवर को कैसे पता है कि मेरी ये खुराक है, मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना, तो अल्लाह ने पकड़ा हुआ है। तो ये इस आयत में लिखा हुआ है, अल्लाह ने उनके दिमाग में ये सेट किया होता है कि तुमने यहाँ रहना है, ये खाना है, और यहाँ पर तुमने अपने जिंदगी गुजारनी है। तो ये फिर उस हूद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हमारे दिमाग जो है ना, वो अल्लाह के कंट्रोल में है, मैं तो वही करूंगा जो अल्लाह ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है, अब तुम वही करी जाओ जो तुम करना चाहते हो। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सीधी राह पर चलने से मिलता है। अब ये पॉइंट नोट करें, ये बहुत गहरा पॉइंट है। इन्ना रब्बी, अब हम भी कहते हैं ना रब रब कर दे बुढ़े होए, कहते हैं ना, रब को ढूंढ रहे हैं, रब किथे हुए, अल्लाह कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा। अल्लाह कहता है मेरी एक ही जगह है जहाँ मैं तुम्हें, एक ही रास्ता है मेरा एक ही रास्ता है। वो कौन सा, अल्लाह सिरातिम मुस्तकीम, मेरा एक ही मकान है, कौन सा, इस्लाम। मैं इस्लाम के घर में मिलूंगा, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर मिलूंगा, तकवा का ज़ादे राह जमा करने से मिलूंगा, ईमान का नूर घर में रखने से मिलूंगा, रसूल की पैरवी करने से मिलूंगा। अल्लाह ऐसे मिलता है। अल्लाह खाली नमाजें पढ़ने से नहीं मिलता कि बस नमाजें पढ़ ली। सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, अंबिया का। पीछे हमने पढ़ा है ना सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया था कि सिरातुल मुस्तकीम अंबिया का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, शुहदा का रास्ता है, सोलहीन का रास्ता है। जब तक हम उनके पीछे नहीं चलेंगे ना, पीछे जो चल चुके हुए हैं उनके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, तब तक हम अल्लाह को पा नहीं सकते। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि आपका काम सिर्फ 57, आपका काम पहुंचा देना है,
हूद अलैहिस्सलाम को, आप इनको पैगाम पहुंचा दें, अगर नहीं मानेंगे तो अल्लाह इनको मिटा देगा। ऐसे अल्लाह ने कितनी कौमें मिटाई हैं, ऐसी बात है कि नहीं। आज हम भी अल्लाह की अगर नहीं मान रहे तो ना मानो, अल्लाह कहता ना मानो, तेरे वर्गे कहीं आए तो कहीं गए, आज उनका नामो निशान भी नहीं। आज तुम इन घरों में रह रहे हो, तेरे वर्गे कहीं रह के गए नहीं, ऐसी बात है कि नहीं। हम किस अकड़ में बैठे हुए हैं, इस मुल्क में बैठे हुए हैं, आज रिज़्क मिल रहा है। अल्लाह कह रहा है तेरे जैसे बड़े थे, तेरे से बड़े घर थे उनके, तेरे से बड़ी ताकतवर जिस्म आल औलाद थे, खानदान बागों वाले थे, महलों वाले थे, आज कहाँ है, कोई नामो निशान ही नहीं। तो ये अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला कहता है मैं मिसालों से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरी आयात का इनकार करते हैं और मेरे रसूल की नाफरमानी करते हैं ना, फिर उनका अंजाम तबाही होता है, तबाही होता है। और अल्लाह कहता है फिर मैं बचा लेता हूँ, ईमान वालों को बचा लेता हूँ। निजात किनको होती है, जो रहमत वाले होते हैं। तबाह किन्हें करता हूँ, जो लानत वाले होते हैं। अल्लाह ताला कहता है यही हाल था आद की कौम का कि उन्होंने रसूल का इनकार किया। जब उन्होंने रसूल का इनकार किया तो जाहिर है फिर वो शैतान के पैरोकार बन गए। तो जब शैतान के पैरोकार बन गए तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने लानत उनके पीछे लगा दी, लानत उनके पीछे लगा दी। ये पॉइंट नोट करें आप, जो रसूल का नाफरमान होता है वो शैतान का पैरोकार होता है, और जो शैतान का पैरोकार होता है उसके पीछे अल्लाह की लानत लगी हुई होती है। और जिसके ऊपर अल्लाह की लानत लगी हुई होती है ना, वो आखिर में फिर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें ना मुख्तलिफ जैसे होता है ना कहानियां सुना के, तो अल्लाह हमें नसीहत दिला रहा है कि तुमने किस रास्ते पे चलना है, लानतियों के रास्ते पे चलना है या के रहमत वालों के रास्ते पे, अनअमता अलैहिम के रास्ते पे चलना है। देख लो, अंजाम मैं तुम्हें दोनों के बता देता हूँ, फैसला तुम कर लो, दिखा मैं दूंगा। आगे फिर सालेह अलैहिस्सलाम का देखे किस्सा शुरू हो जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह थी और वो भी यही पैगाम लेकर आए थे और वो भी कहती थी दिखाओ हमें। तो वो भी उन्होंने भी अपनी कौम को इसी तरह बुलाया, तौबा करो, नदामत करो, अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। उन्होंने कहा था कि कुफर की रविश छोड़ दो। ये सारी आयात जो आगे आ रही है ना 61, 62, 63, 64, तो वो यही कहते रहे दलील दिखाओ, हमें कोई निशानी दिखाओ। तो फिर आपने कहा अच्छा चलो ऊँटनी, इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाली। तो फिर उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा भी कि अब ये जो अल्लाह की निशानी है ना, इसको तुमने तंग नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको मार दिया। फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि 3 दिन के अंदर 3 दिन की मोहलत अल्लाह ने दी उनको। 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने इस कौम को हलाक कर दिया। और जो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ थे ना, उनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से बचा ली। यहाँ एक पॉइंट नोट करें, अल्लाह जीना आमनु माअहू बिरहमतिन। अल्लाह बचाता किसे है, जो नबी के साथ हो, जो रसूल के साथ हो, उन्हें अल्लाह कहता है बिरहमतिन, ये मेरी रहमत के साए में होते, ये रहमत वाले हैं। जो रसूल को नहीं मानते वो लानत वाले। ये आप देखिए जरा पॉइंट। आज हमें भी अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन का दर दिया हुआ है। मेरे महबूब की सुन्नत, मेरे महबूब हर कदम हमारी जिंदगी का अमल साले होना चाहिए, अहसन अमल होना चाहिए। रहमत मुस्तफ़ा में तुम्हारा अमल हर होना चाहिए। मैं जुबान खोलूं तो मैं सुन्नत के मुताबिक खोलूं, मैं किसी की दिल आजारी ना करूं, मैं किसी की ऐब जोई ना करूं, मैं किसी की गीबत चुगली ना करूं। मेरी जुबान पर भी रहमत के साए हों, मेरे हाथ अमल, मेरी सोच किरदार, मेरे अहलाक पर भी सुन्नत शरीयत तरीकत के पहरे लगे हुए हों। ना मैं मर्जी का पहनूं, ना मैं मर्जी से चलूं, मैं वही करूं, वही बोलूं जो सुन्नत है, वही पहनूं जो शरीयत है, उसी रास्ते पर चलूं जो तरीकत है। दिल में हो मोहब्बत रसूल हो और मैं चलूं तो रिजाए मुस्तफ़ा पर चलूं। अगर हमने ये डर ले लिया ना, तो फिर हम अल्लाह की रहमत के साए तले होंगे। तो फिर अल्लाह हमें हर मुश्किल मुसीबत से न सिर्फ दुनिया में बचाएगा बल्कि आखिरत में भी हमें बचाएगा।
बचा लेगा। ये देखिए, इससे ज्यादा अल्लाह हमें क्या समझाए, इतनी क्लियर तो अल्लाह कह रहा है, माहू भी रहमतिन, जो मेरे नबी के साथ होता है ना, रहमत के साए उस पर होते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो नमाज पढ़ के आ जाए दौड़ के वो मेरी रहमत के साए तले आ गया, ये भी नहीं कहा कि जो रोजे रखेगा वो रहमत के साए में। माहू, ये नुक्ते नोट किया करे, जो मेरे नबी के साथ होगा, भी रहमतिन, वो ही रहमत में होगा अल्लाह की तरफ से, उन्हें ही अल्लाह बचाएगा रुसवाई से, दुनिया में भी अल्लाह उन्हें बचाएगा बीमारी तकलीफ गुर्बत से, आखिरत में भी अल्लाह उन्हें बचाएगा रुसवाई और जिल्लत से। अल्लाह कहता है आपका रब ही ताकतवर है, गालिब है, यानी अल्लाह की बात कोई बदल नहीं सकता। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है, कुफर का नतीजा। फिर अल्लाह ताला देखें ये बता रहा है आयत 67 में, दियारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों में ऊंधे पड़े हुए थे, बड़े बड़े घर थे कहते हैं उनके, पहाड़ काट के, वो आपने अभी भी देखा होगा है वहां पर, पहाड़ों को काट के वो अंदर घर बनाते थे, इतने मजबूत अपनी तरफ से कि कोई चीज हमें छू नहीं सकती, ना आंधी ना तूफान ना हवा ना कुछ ना बारिश। फिर भी अल्लाह कहता है जब अल्लाह की पकड़ आई तो दियारिहिम, घरों के अंदर घुस गई उनके, जासिमीन, ऊंधे पड़े हुए थे ऐसे। ऐसी आज भी होता है, बीमारी ऐसी आई, दौलत कमाई किसी काम ना आई, ऐसी अल्लाह मर्ज अंदर भेज देता ना, जिस्म के अंदर। अल्लाह कहता ऐसे मैं तेरे मर्जे भेजूंगा ना, तेरी कमाइयां सारी पड़ी, तू ऊंधा, तू बाजियां लगाएगा कि मुझे कोई बचा ले। ये अल्लाह समझा रहा है, ये अल्लाह इनडायरेक्ट हमें समझा रहा है। कुफर का नतीजा, कुफर का नतीजा क्या है, जो नबी का नाफरमान है ना, जो नबी का गुस्ताख है, उसका नतीजा क्या है, अल्लाह की रहमत से दूरी है। आप समझ रहे हैं। फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह वाकया सुना रहा है कि उनके पास मेहमान आए, वो बहुत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज थे। जल्दी से उनके पास जो था वो ज़िबा करके, तो उन्होंने फिर उसका रखा खाना, तो वो नहीं खा रहे। आपने कहा पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं खा रहे, उन्हें मेरा खाना नहीं पसंद आया। उन्होंने कहा डरे नहीं, हम तो फरिश्ते, हम तो अजाब के लिए भेजे गए हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, तो जो और खुशखबरी आपको भी देनी थी, इसलिए पहले आपके घर आए हैं, पहले आपके घर आए हैं, पहले आपको खुशखबरी सुना दे। तो वो कहते हैं वो फरिश्ते बड़े हसीन थे, प्यारे प्यारे फरिश्ते अल्लाह ने भेजे। अल्लाह को पता था ना कि ये जो नबी होते हैं ना बड़े दर्दमंद होते हैं, इन्हें बहुत अपनी उम्मत की फिक्र होती है, गम में रोते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा नबियों को ना अपनी उम्मत का गम होता है। तो अल्लाह ताला कहता है खुशखबरी भी उनको सुनानी थी कि आपकी जो बीबी है सारा, भाई उनको आपको बेटे की भी खुशखबरी देनी थी। तो वो हैरान हुई कि भाई ये कैसे होगा, हम तो बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। अब देखें वो भी हैरान हुए, हालांकि वो नबी की जोजा थी, तो वो हैरान क्यों हुई, वो हैरान इस बात पे हुई कि ये तरतीब वाला मामला नहीं है कि औलाद तो अल्लाह देता जवानी में है, तो हम तो बुढ़ापे में है। उन्हें भी हैरत हुई कि ये कैसे होगा, उन्हें भी हैरत हुई। अब देखे ना यहाँ पे मेरा नाम भी कहीं आता है इधर ही मैं कुरान में छुपी बैठी, तुझे अभी देखा ही नहीं। आज 73 आज 73 में देखे, कालू आताजबीना जी, आताजबीन, आताजबीन का मतलब होता है उन्होंने माथे पे उनकी हैरत हुई, तो जबीन हुई हैरत हुई, तो मेरा मिला जबीन, जबीन को भी हैरत हुई। वैसे यहाँ भी हैरत लिखा हुआ है, हैरत हुई रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत मेरे घर हुई कि नहीं। ये अल्लाह की रहमत ही तो है कि देखें आप अल्लाह की रजा के लिए आ रहे हैं, कुरान के लिए आ रहे हैं, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी तो अल्लाह की रहमत है ना, जो बरकत है जो जबीन के घर में हो रही है। ये मैं पढ़ी तो इतनी हंसी आ रही थी उस वक्त भी, मैंने कहा देखो अल्लाह कैसे आयतों के अंदर, आयतों के अंदर अल्लाह ने छुपाया होता है। अल्लाह को पता है क्या होना है, क्या हो रहा है। मैं हैरान सच्ची रह गई, देखो अल्लाह क्या दिखाता है, कैसे दिखाता है। मैं गुम हो गई कितनी देर। ताजबीन लिखा हुआ कि वो हैरत होता, उनके माथे पर हैरत हुई, यानी कि ताजबीन का मतलब होता है हैरान रह गए कि ये अल्लाह का अमर होगा, रहमतुल्लाह, ये अल्लाह का अमर ही तो है। उन्हें भी हैरत हुई कि ये बेटा बुढ़ापे में होगा, तो
اللہ کا امر ہوگا رحمت اللہ و برکاتہ، تو فوراً ہی میرا دھیان اس طرف چلا گیا کہ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم رمضان میں بیٹھے قرآن سن رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی برکت ہے کہ برکت والی کتاب سن رہے ہیں۔ دیکھو آیت میں مجھے ملا جو ہم کر رہے ہیں، ہائے صدقے جائیں میں کہتی ہوں۔ اس لیے نا قرآن جو ہے نا حالوں کی کتاب ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارے حال جو ہے نا قرآن میں نظر آتے ہیں، اندر سے حال۔ اللہ کہتا ہے علیکم اہل البیت، یہ دیکھیں اہل البیت، ہم ہیں اہل البیت، ہم ہیں گھر والے۔ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں جن کا مقصد ایک ہے، منزل ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ وہ پیچھے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میرا اہل، اللہ نے کہا تھا تیرا اہل نہیں ہے، تیرے جیسے عمل نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے۔ اہل کون ہے؟ جو ہم سارے ایک ہی عمل، قرآن کے راستے میں، قرآن کے لیے رحمت اور برکت کے منگتے بن کے بیٹھے ہوئے نا، ہم ہیں اہل البیت۔ یہ دیکھیں نا کتنی امیزنگ آیت ہے، یعنی کہ میں تو کتنی دیر جیسے میرا تو دل نا جیسے فریز نہیں ہو جاتا کہ یہ کیا اللہ بتا رہا ہے، مجھے دکھا رہا ہے تم ہو اہل البیت۔ اصل گھر والے یہ ہوتے ہیں جو ایک راستے ایک منزل پر مل کر چلتے ہیں۔ انہ حمید مجید، اللہ کہتا ہے یہ ہے بے شک وہ قابل ستائش اور بزرگی والا ہے۔ جو رب ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے نا وہ حمید مجید ہے۔ آگے پھر لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا معاملہ ان کا سارٹ آؤٹ ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا، خوشخبری مل گئی، تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، اللہ کہتا ہے ویسے تو بہت ہی وہ میرے ان ابراہیم حلیم، بڑے حلیم تھے، یعنی کہ بہت وہ متحمل مزاج ہیں، اواہ منیب ہیں، بہت وہ رجوع کرنے والے، منیب یعنی کہ نا یہاں سے ہوتا ہے انیب، منیب، قریب، آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہم سیکھتے ہیں کہ قلب منیب، انیب، شہید، تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے نا، اللہ کہتا ہے ویسے تو بہت ہی وہ منیب تھے، بہت میرے طرف آہوزاری کرنے والے، محبت کرنے والے، لیکن اس وقت انہوں نے تو کہا کہ یا اللہ یہ تو کیا کرنے لگا ہے، یہ میرا لوط جو ہے یہ تو میرا حالازاد بھائی ہے، تو اس کی قوم کو تباہ کرنے لگا ہے۔ پریشان ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام کہ کیا ہونے لگا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پھر ان سے کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ابراہیم اس سے درگزر کریں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میرے بھائی کی قوم تباہ ہو جائے گی، انہیں فکر ہوگی نا کہ کیا ہونے لگا ہے، کیونکہ وہ آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، تو وہ جیسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ انہو قد جاء امر ربک، فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہو کر رہے گا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے یہ کیوں فیصلہ کیا تھا، اللہ نے فرشتے حسین بھیجے، آپ کو پتا حسین فرشتے بھیجے، اللہ کو پتا تھا میرے جو نبی ہے نا یہ بڑے درد مند ہے، یہ پریشان ہو جائے گا یہ خبر سن کے کہ میں اس قوم کو تباہ کرنے لگا ہوں، تو اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے نا اپنے نبی کو دکھانے کے لیے حسین فرشتے بھیجے۔ جب وہ حسین فرشتے آئے تو وہ جو قوم کے جو لوگ تھے وہ دوڑے آئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں نئے لڑکے آ گئے ہیں۔ وہ قوم آپ کو پتہ نا لواطت کرتی تھی، وہ قوم نافرمان تھی، گستاخ تھی، تو وہ یہ سوچ کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھانے کے لیے کہ یہ ایسی قوم ہے اس لیے یہ تباہ ہونے جا رہی ہے، آپ کیوں ان کی فکر کر رہے ہیں، انہوں نے نافرمانی تو آپ کی ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دے رکھی ہے۔ تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، فرشتے دیکھ کے دوڑے آئے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی ان کی حباست والی ان کی نیچر ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ان میں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اچھا ہو، نیک سیرت ہو، یہ تو بس انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہ کرو، جب انہیں سمجھ آئی، تب انہیں سمجھ آئی کہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اور تب وہ خود بھی کہنے لگے کاش میں تم لوگوں سے دور چلا جاتا نا، میں نہ یہ دن دیکھتا، میں نہ دیکھتا، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کی نہیں نہ دیکھ سکتی کوئی بربادی تباہی ہو، اس طرح نبیوں کو بھی اپنی امتوں سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری امت تباہ ہو۔
जब नहीं उन्होंने आखिरी वक्त तक देखिए अपनी उम्मत को समझाने की कोशिश की कि तुम ये काम छोड़ दो, अभी भी मैं फरिश्तों को रोक लेता हूँ, लेकिन वो कहे नहीं हमें तो जाने दो, तो नहीं हमने देखे हैं तुम्हारे घर आए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो उन्होंने कहा फिर बेहतर होता कि मैं ही कहीं चला जाता, मेरी जान छूट जाती, मैं ये वक्त ना देखता। अल्लाह ताला ने फिर लूत अलैहिस्सलाम से कहा आप छोड़ दें, इस बस्ती को छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने नहीं छोड़ना गुनाह, आप इस बस्ती को छोड़ दें, इन पर अजाब का फैसला हो चुका है। फिर सुबह अजाब आया, अल्लाह ने पत्थरों की बारिश की, फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई। आगे शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है आयत 84 में। नाप तोल में वो कमी करते थे, अल्लाह कहता है नाप तोल में वो कमी करते थे, और वो क्या थे, वला तासु फिल अर्दि मुफसिदीन। 85 अल्लाह कहता है वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, वो मुफसिदीन थे जी। आप नोट करते आ रहे हैं मेरे साथ, कौन कौन सी कौमें तबाह होती हैं? मुफसदीन, जालिमीन, जाहलीन, फासिकीन, मुजरिमीन, गाफिलीन, मुनाफिकीन। ये पूरी फेहरिस्त है। और अल्लाह ने हमें ये क्यों बताई है? अल्लाह हमें ये कह रहा है कि तुम भी निकलो, अगर तुम इन गढ़ों में जिंदगी गुजार रहे हो ना, गाफिलीन, जाहलीन, जालिमीन से, तो निकलो, क्योंकि ये अंजाम देख लो ना, क्या अंजाम हुआ इन लोगों का जो इस तरह के थे। तो शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला सुना रहा है कि वो नाप तोल में कमी करते, नबी को ताना देते, और शुएब अलैहिस्सलाम को कहते, आयत 87 88 में अब इकट्ठा जा रही है, 87 88 में वो उनको कहते हैं कि हमारे पास दौलत है ना, हम जो मर्जी करें, तुम्हें क्या है, हमारी दौलत है, हमारा माल है, जिस तरह चाहे खर्च करें, हराम करें हलाल करें, तुम कौन होते हो कहने वाले। तो फिर अल्लाह ताला कहता है उन्होंने नबी को जुटलाया। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जिस तरह दूसरे नबियों ने कहा था कि भाई मैं अल्लाह की दलील पर हूँ, अल्लाह की रहमत पर हूँ, मैं तो रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, ये देखे ना, रिज़्क़न हसना, रिज़्क सिर्फ रिज़्क हलालन होता है ना, हम तो जिसके पीछे भागते हैं, रिज़्क़न हसना भी होता है, रिज़्क़न करीमा भी होता है। तो अल्लाह से रिज़्क़न जब भी मांगो ना, रिज़्क़न हसना मांगो, नेकी वाला रिस्क मांगो, नूर वाला रिस्क मांगो, हिदायत वाला रिस्क मांगो। हम तो सिर्फ हलाल ही रिस्क मांगते हैं ना, हमारी पहुंच ही नहीं। तो रिस्क हसना। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे दुनिया के कोई मालो मता की तलब नहीं है, मुझे तो मेरे रब से सब कुछ मिल रहा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग दौलत के नशे में इतने गुम थे कि उन्होंने नहीं मानी। फिर वही बात आई, शुएब अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की, अम्मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब मुनीब शहीद। फिर अल्लाह के करीब। अंबिया का मैं आपको बताऊं, उनका ये रास्ता होता है, उनीब मुनीब शहीद करीब। उन्हें दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, दुनिया के मालो मता से। और उन्होंने अपनी कौम को डराया, आयत 89, डराते ही रहे, उन्हें इस्तगफार की तरफ लेते, कहा इस्तगफार करो, तौबा करो, इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह ताला नहायत मेहरबान है, मोहब्बत करता है अल्लाह तुमसे, इसलिए नबी भेजता है, इसलिए किताबें भेजता है, इसलिए तुम्हें हिदायत दिखाता है। लेकिन क्या, वो कौम तो थी नाफरमान, वो तो अकड़ में चले गए। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें संसार ही कर देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम से कहा अगर ये तेरा थोड़ा सा ना होता, 2-4 लोग तेरे जानने वाले, तेरा थोड़ा सा खानदान, तो देखो हम तो तुझे संसार ही करते, तू क्या बातें कर रहा है, हमें हमारी इस्लाह कर रहा है, तेरे पास है क्या। यानी वो नबियों की तौहीन करते, तजलील करते, तकजीब करते। तो फिर अल्लाह ताला फिर ऐसी कौमों को तबाह कर दिया करता है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम, यानी कि क्या मेरा कुनबा, वो कहते थे तुम्हारा तो है क्या, तुम्हारे पास है क्या। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा क्या मेरा कुनबा तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा है मोअज़्ज़ज़, यानी कि मैं तुम्हें कुनबा दिखाऊं, माल दिखाऊं, फिर ही तुमने मेरे ऊपर मान लेके आना। ये नहीं तुम सोचते कि मैं हक बात कर रहा हूँ। अल्लाह को तुमने पसे पुष्ट डाला हुआ है, अल्लाह की तुम मानते नहीं और बहाने ये बना रहे हो कि कहने वाला जो है इसका खानदान किधर है, जो बात कर रहा है उसको कहते थे पहले अपना खानदान तो दिखा, तेरा खानदान किधर है, मालो दौलत किधर है, तेरी बात हम तब मानेंगे। तो वो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे खानदान से तुम्हारी हिदायत का क्या ताल्लुक है, तुम अपनी हिदायत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह से ज्यादा मेरा खानदान है तुम्हारे आगे। तो इस तरह अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो लोग नाफरमान लोग होते हैं ना, इधर उधर की बातों में वक्त जाया करते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा है मेरी कौम, तुम अपनी जगह पे तंग आ गए ना, तंग आके क्या कहा है मेरी कौम, अच्छा चलो तुम करते रहो अपना काम, ना तो मैं तो तुम्हें दिखा नहीं सकता, ना खानदान, ना पैसा, ना दौलत, ना मालो मता, चलो फिर तुम करते रहो जो तुम कर रहे हो। अन करीब तुम जान लोगे किस पर वो अजाब बेचता है जो रुसवा कर डालेगा, और कौन है
जो झूठा है तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर। इससे हमें क्या समझ आया? जब कोई हक बात कहे तो उसको सुना करे, आगे से बहस ना किया करे, तो ये तो वो ना किया करे, बस हक बात सुना करे और समझ आ जाए तो मान लिया करे। सही बात है। लेकिन क्या आगे से बहस मुबाहिसा नहीं करना चाहिए। फिर आप वही हिसाब हुआ जो पहली कौमों के साथ हुआ था, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी वही हुआ। अल्लाह कहते हैं मैंने उनको बचा लिया जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे, जो जुटलाते थे, अल्लाह ने उनको जलील और रुसवा कर दिया। वो भी अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। हौलनाक आवाज ने उनको आ पकड़ा। दियारिहिम जासिमीन। अपनी तरफ से घरों में बड़ी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे बच्चों औलाद के साथ। अल्लाह कहता है घरों के अंदर ही मैंने अजाब उनके डाला और ऐसे हो गया कि जैसे वराने तबाहियां मच गईं, जैसे वो यहाँ कभी रहते ही नहीं थे। आप देखे ना, ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा करती थी। क्यों करती थी अब आपको समझ आ रही? अपनी उम्मत के लिए कितनी कौमें तबाह हुई नबियों की तकज़ीब की वजह से। सही बात है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए तो गमज़दा होते थे। आगे देखें मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि बी आयातिना, ये जो मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, बी आयातिना, ये लेकर आए थे अल्लाह की निशानियां, व सुल्तान मुबीन। ये है वजह कि जब नबी आता ना जो वो सुल्तान मुबीन वाला होता है, रोशन दलील के साथ। और जब कोई सुल्तान मुबीन को जुटलाता है फिर वो जो हक़ मुबीन है वो गज़बनाक हो जाता है। वो कहता है ये सुल्तान मुबीन तो मेरा था, ये मेरी दलील थी, तेरी जुर्रत, तूने मेरी दलील की तकज़ीब की, तूने मेरी दलील की गुस्ताखी की। फिर ये बात अल्लाह को बहुत गज़बनाक करती है। आप समझते हैं? नबी क्या होता है? सुल्तान मुबीन। अब हमारे जो रसूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुल्तान मुबीन भी है, रहमतन लिल आलमीन, बशीर नज़ीर। आपकी तो बेइंतहा सिफात और खूबियां हैं, हम तो उनको जुटला रहे हैं। हम तो उनकी ना सुन्नत माने, ना शरीयत माने, ना तरीकत माने, ना मोहब्बत करे, ना इताअत माने, ना इत्तबा करे। हम भी तो ये जुर्म कर रहे हैं कि नहीं? फासिकीन हम भी हैं, जाहलीन हम भी हैं, मुजरमीन हम भी हैं, ज़ालिमीन हम भी हैं, और उस पे हम कह देते हैं कि आशिक हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। पता नहीं कहाँ के आशिक, हमें तो ये समझ नहीं आती। आशिक तो वो होता है जो रसूल की सुन्नत, शरीयत, तरीकत, इताअत, मोहब्बत, इत्तबा में जिंदगी गुजारे, जल जल के गुजारे, गुल गुल के गुजारे, मर मर के गुजारे, हिज्र में तड़पे, लम्हा लम्हा आहो जारी करे। कि जैसे रूमी जामी थे कि आपके इश्क में फना है, मैं जल गया हूँ। रूमी जामी कहा करते थे मैं तो सरापा फना हूँ या रसूल अल्लाह, आपकी नजरे करम का तालिब हूँ। वो आशिक होते हैं, घर बार लुटा देते थे, आल औलाद फना कर देते थे, फिर भी कहते थे मैं आपके इश्क में रेजा रेजा हूँ, हंसता हाल हूँ, एक नजरे करम हो जाए ताकि इस आशिक का भी हो जाए गुजारा या रसूल। तेरे जलवे पर, तेरी नजर पर, तेरी नजर मेरी जिंदगी का सवाल है। और हम तो घरों में बैठे, ऐशो इशरत में बैठे, नफ्स परस्ती में बैठे, दुनिया परस्ती में बैठे, हसद चुगल कीना बुग़्ज़ में बैठे, और हम आशिकी के दावे कर रहे होते हैं। ये गफलत जहालत जुल्मत नहीं तो क्या है? अल्लाह ताला हमें भी शऊर अता फरमाए। हम सुल्तान मुबीन, हक़ मुबीन को झुटलाने की बजाय, जुबानी दावे करने की बजाय, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की सादगी, आजजी, फकीरी, असीरी, हुजूरी लेने वाले बन जाए, वरना हमारा हाल भी वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ था। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो फिरौन के पीछे लग गई, उसको दौलतमंद समझा उन्होंने कहा आजकल भी यही होता है, जरा पैसे वाला दुनिया होती है, जरा पैसे वाला वही सच्चा है, जरा पैसे वाला वही इज्जत वाला है। तो ये
तब भी होता था, ये अब भी होता है। जो कुरान वाला है वो कुछ भी नहीं, वो कख भी नहीं। कुरान वाले की कोई इज्जत नहीं, कोई है ही कुछ नहीं। कुरान वाले को तो लोग पीछे लिखा हुआ ना, कहते थे खानदान दिखा, तेरा खानदान कितने है। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फिरौन के पीछे लग गए, उसकी जो कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की, सिर्फ ये देख के कि ये दौलत वाला है, ताकत वाला है, बादशाहत वाला है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे के पीछे नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कोई कितना ताकतवर हो। अगर वो अल्लाह का नाफरमान है, उसके पीछे कभी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम वही होगा जो फिरौन का हुआ था। फिरौन कहाँ जाएगा? शैतान के पीछे। शैतान के पीछे अल्लाह कहता है मैंने लानत लगाई है, ये सारे दोज़ख में उतरेंगे। अल्लाह हमें ये हाल सुना रहा है। अल्लाह कहता है ये हाल है किनका? जालिम कौमों का। नाफरमानी की, फिर अजाब का शिकार हो गए। आयत 102 में फिर अल्लाह ताला कहता है उनके लिए अलीम, उनके लिए वो जालिम थे और दर्दनाक अल्लाह की गिरफ्त में आए, अल्लाह के अजाब में आए। इस तरह अल्लाह कहता है अज़ल से दो ग्रोह बने हुए हैं। एक जो ग्रोह है वो शकी है, आयत नंबर 105 में। एक ग्रोह साइद है। शकी वो होते हैं जो अल्लाह के अजाब का शिकार हुए, अपने नबियों की नाफरमानी की, उन्होंने सुल्तानुल मुबीन को झुटलाया, हक्कुल मुबीन को झुटलाया, वो अदुव्वुल मुबीन के पीछे चले, तो फिर वो शकी हो गए। शकी का मतलब होता है सख्त दिल, बदबख्त हो गए। ये होता है बदनसीबी, ये होती है। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह कहता है दूसरा ग्रोह जो है वो साईद है। साईद कौन होते हैं? जो सादत वाले, सादतमंद होते हैं, नबी के इताअत गुजार होते हैं, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले होते हैं। अल्लाह कहता है ये दो ग्रोह बने हुए हैं। इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद 107। अल्लाह कहता है मैं जो चाहे करता हूँ। अल्लाह ने ये फैसला किया हुआ है कि हशर तक दो ही ग्रोह दुनिया में रहेंगे, एक शकी और एक साईद। ये अल्लाह का फैसला है। आगे 109 में अल्लाह कह रहा है ये जो लोग बुत परस्ती करते हैं या नफ्स परस्त होते हैं, इनके पास कोई भी दलील नहीं होती, कोई भी दलील नहीं होती। ये सिर्फ अपने गुमान, अपने जहन, अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। फिर आगे अल्लाह क्या कह रहा है? और ये शक में ही पड़े रहते हैं, हर काम में शक। 110 शक में ही पड़े रहते हैं, पता नहीं ये सही है कि पता नहीं वो सही है। हालांकि अल्लाह कहता है कुरान में मैंने सारे शक दूर कर दिए हैं, हिदायत की हर बात बता दी है, हर नसीहत सुना दी है, फिर भी शक। फिर शक कहाँ से आता है? शैतान से ही आया ना। शक, शैतान और शकी। देखिए आज शकी भी मिल गया ना, तीसरी बात भी मिल गई है। जो शकी लोग होते हैं ना, शकी कौफ से, शकी लोग होते हैं वो शक करते हैं और शैतान के पीछे चलते हैं। और शर, देखिए शर भी आ गए, सारे शीन मिली जा रहे हैं। शर वाले काम करते हैं, शकी दिल होता है। और फिर वो अल्लाह कहता है आखिर में होगा क्या? जहन्नुम में। ये भी देख लें 106 में जफीर व शहीक, शहीक भी आ गया भी शीन ना। शोर करेंगे जहन्नुम में, शोर करेंगे। फिर ये जो दुनिया में शक कर रहे हैं ना और शर वाले अमल कर रहे हैं और शकी दिल वाले हैं और शैतान के पीछे हैं, फिर वो जहन्नुम में शोर करेंगे, शहीक, लड़ेंगे, एक दूसरे पे लानते भेजेंगे। देखिए क्या मैं कहती हूँ, अल्लाह के बंदा लफ्ज देखे ना तो बंदा गुम ही हो जाता है। कड़ियों से कड़ियां। शीन से शक है तो शीन से शैतान है, तो शीन से शर है तो शीन से शोर। शोर वही करता है, शोर वही करता है ज्यादा जो शक में होता है। नहीं वो इस जुबान खोल करके। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला कह रहा है कि साबित कदम रहो, हक के रास्ते पर जब चलो, फस्तकिम, साबित कदमी बहुत जरूरी होती है। ये पॉइंट नोट करें, ये नहीं कि आज कुरान के लिए बैठे हैं कल पता ही नहीं कुरान का। अल्लाह कहता है हक के रास्ते पर साबित कदम रहो, जालिमों के साथ ना होना। 113 वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों की तरफ मत झुकना। हम तो झुक जाते हैं, हम कहते हैं हाय मेरा तो खानदान है ना, मैं तो रिश्ता निभाना है, मैं तो जाना ही जाना है। अल्लाह कहता है वला तरकनू, अल्लाह कह रहा है जरा झुकना भी ना, मिलना तो दूर की बात है, हम तो जपियां डालते हैं। अल्लाह तो कह रहा है, अल्लाह तो कह रहा है वला तरकनू, जरा हो ही भी ना आगे।
इल्लल्लज़ीना ज़लमू, क्योंकि वो जालिम जो है ना वो आग में जा रहे हैं। जा रहे बस। और उनका काम क्या है? लहवन व लाइब, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हैं, माल की मोहब्बत में गर्क हैं, पैसे की मोहब्बत में गर्क हैं। अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार तो होना कोई नहीं। तो अल्लाह कह रहा है क्यों इनके पीछे दौड़ रहे हो, इनके गम क्यों लगा रहे हो। आगे अल्लाह ताला देखे क्या कह रहा है, इतनी प्यारी बात अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। उम्मीद अल्लाह ने पैदा कर दी ना कि अगर तुम जालिम थे, जाहिल थे, गाफिल थे, मुनाफिक थे, ये जो कौमें तबाह हुई हैं, अगर तुम इनकी तरह थे ना तो अभी भी मायूस नहीं होना, अभी भी वक्त है। क्या करो? इन्नल हसनात, नेकियां कर लो ना। वो जो हसनात पीछे अल्लाह ने बताया था ना, अमलन अहसन, अहसन अमल करो, उसवा हसना मुस्तफ़ा की पैरवी में करो। उसवा हसना मुस्तफ़ा की पैरवी करोगे तो फिर तुम एहसन अमल करोगे, तो फिर क्या होगा? वो एहसन अमल जो तुम करोगे ना उसवा हसना की पैरवी में, युज़हिबन सय्यिआत, वो तुम्हारे पिछले गुनाहों को मिटा देगा। ये नहीं अब सोचना कि मैं पहले गफलत में था, मैं तो अब गाफलों में ही मैंने जाना है। अल्लाह कहता है नहीं, जब तुम समझ जाओगे तुम्हें शऊर आ जाएगा, तुम सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाओगे। सिरातल मुस्तकीम पर, लेकिन शर्त क्या है? पहले इस्तगफार करो, फिर तौबा करो, फिर सिरातल मुस्तकीम पे चलो, फिर अनअमत अलैहिम की सोबत में बैठो, फिर तकवा का ज़ादे राह जमा करो, फिर इस्तकामत से चलो, फिर तुम एहसन अमल जमा करो। फिर तुम्हारे जो एहसन अमल होगा ना वो तुम्हारे पिछली बुराइयां और गलतियों को मिटा देगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह के वादे पे यकीन है ना आपको? तो फिर आज से हमने इस्तकामत से ये नियत करें, हमने इस्तकामत से एहसन अमल करने, और वो कहाँ से मिलेंगे? सिरातल मुस्तकीम पे चलना है, यानी कि सुन्नत, शरीयत, तरीकत, मोहब्बत, इताअत, मोहब्बत, इत्बाए रसूल में अमल करने हैं। और फिर अल्लाह कहता है वस्बिर, उसके बाद सब्र भी करना होगा। लोग तुम्हें बड़ा बुरा कहेंगे, लोग कहेंगे ए वही है ना ਜਿਹੜੀ बड़ी फैशन कर दी सी, ये ते वही है, इन्हें कौन की हो गया, ये तो दिखावा कर रही है, ये तो बड़ी बन के दिखा रही। अल्लाह कहता है वस्बिर, वस्बिर, बड़े लोग बातें करेंगे, ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे। वस्बिर फ़इन्नल्लाह, अपना काम करते रहना। इन्नल्लाह ला युदिया अजरल मोहसिनीन, जितनी तुम्हें लोग बातें करेंगे तेरे दर्जे ही बुलंद होंगे। तुम मुसलमीन से मुत्तकीन, मुत्तकीन से मोमिनीन, मोमिनीन से स्वालिहीन, मोहसिनीन के दर्जे पर पहुंच जाओगे तो फिर मैं तुम्हें मुखलसीन तक खुद ले जाऊंगी। ये पॉइंट नोट करें। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है 116 में, फसाद से रुको। अल्लाह ताला कहता है फसाद ना करो। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि दुनिया में अल्लाह ताला का जो दुनिया में जो लोग अल्लाह के दीन में फसाद करते हैं ना, दीन में फसाद अल्लाह को सख्त नापसंद है। पैरवी करो। अल्लाह ताला कहता है और जालिमों ने, जालिम जो लोग होते हैं वो दुनिया में फसाद अंगेजी करते हैं, और जालिमों ने ऐशो इशरत की पैरवी की जिसमें वो पड़े हुए हैं। वत्तबाल्लज़ीना ज़लमू, जो जालिम, बार बार ये लफ्ज आ रहा है ज़लमू ज़लमू। जालिम जो लोग होते हैं वो ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारते हैं। ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने के लिए वो दुनिया में फसाद करते हैं। अब ये है असल दंगा। जो लोग ऐशो, जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत थोड़ा सा दे दिया है ना, अब वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारें। अब ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने के लिए वो दुनिया में जिहाद नहीं करना चाहते, वो फिर फसाद करते हैं। उन्हें कहो ना कुरान की तरफ आओ तो वो आपसे लड़ना शुरू हो जाएगी। उन्हें कहो ना रसूल की पैरवी करो, वो कहेंगे तू आपकी चीज है, आपकी जात पे हमले शुरू कर देंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि ये जो उन्हें थोड़ा सा पैसा मैंने दिया हुआ है ना, ये इनके लिए फसाद ही बन गया। और ये इनका हाल क्या है? कानू मुजरिमीन, ये मुजरिम है, आदि मुजरिम है। जैसे आदि मुजरिम होता है ना, उसे जुर्म का एहसास भी नहीं होता। उसे कहो ना झूठ झूठ ना बोलो तो वो आदतन झूठ इतने बोलते हैं पता ही नहीं होता झूठ झूठ है। वो झूठ समझते नहीं है, मुनाफकत को मुनाफकत नहीं समझते। वो कहते हैं जितनी हमारी मुनाफकत होगी उतने हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे लोगों से होंगे। जिसके मुंह पर हो ना उसी के दोस्त बन जाओ, और अंदर से किसी के भी दोस्त नहीं। मुनाफकत इतनी आम है कि नहीं? आज हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, खानदानों में, घरों में मुनाफकत इतनी आम है
کہ اب इसको कोई जुर्म समझता ही नहीं है, झूठ बोलने को कोई जुर्म समझता ही नहीं है, जुल्मत का किसी को पता ही नहीं है, ना किसी को गफलत का पता है कि कुरान पर अमल नहीं कर रहे तो ये गफलत है, किसी को पता ही नहीं है। सब जहालत में हर चीज आम हो गई हुई है, बुराई इतनी आम हो गई हुई है कि अब सच बोलना जुर्म बन गया हुआ है। आपको पता हुआ है, जो बंदा सच्चा है, जो बंदा दीन के रास्ते पे है, इसे लोग कहेंगे ये तो पता नहीं अपने आप को की समझ दी, बड़ी मुतकब्बर। अब ये हाल हो गया हुआ है। तो आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह सबको हिदायत दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने हर एक को रास्ता दिखाया हुआ है। मर्जी तुम्हारी है, आगे जिस रास्ते पर चलोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है आयत 119 में कि ये फैसले अल्लाह हशर में करने वाला है कि क्या अल्लाह ताला फैसले करेगा, जो सा तुम रास्ता लोगे उसका तुम अंजाम खुद ही देख लोगे। अगर तुम गलत रास्ते पर जाओगे, लामलाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन, तो जो नास है, जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं अल्लाह की नाफरमानी और रसूल की नाफरमानी में जो वक्त गुजार रहे हैं ना, फिर अल्लाह कहता है आखिर में मैं उनके साथ और जिन्नात के साथ जहन्नुम को भर दूंगा। यानी आज तेरे अंदर है ना गुस्ताखी रसूल भरी हुई है, आज तेरे अंदर अल्लाह की नाफरमानी भरी हुई है ना, तो अल्लाह कहता है कल मैं तेरे से ही अपनी जहन्नुम भरूंगा। ये सोच ले तू, अब नाफरमानी करते हुए सोच ले तूने अपने अंदर बनना क्या है। अपने अंदर मुनाफकत भरी हुई है ना, अपने अंदर तू लेके बैठा हुआ है अपनी तरफ से मुनाफकत, जुल्मत, जहालत, गफलत लेके बैठा हुआ ना, बार के बैठा हुआ है, कल इसी से जहन्नुम भर दूंगा। बात है तो जो तूने भरा वो उससे मैंने तुझे भर दिया। आप समझ रहे हैं, तूने अपने अंदर जहन्नुम भरी हुई थी, वो आग, गुस्से की आग, नफरत की आग, हसद की आग, सरकशी की आग, फिर यही आग तुझे उस आग में ले जाएगी, छोटी आग से बड़ी आग में चला जाएगा। देख ले तू, ये अल्लाह कह रहा है। आगे देखिए अल्लाह ताला देखिए क्या कह रहा है। मैं कहती हूँ इतनी प्यारी बात है। अल्लाह ताला कह रहा है ये जो सारे किस्से हमने आपको सुनाए हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुना रहा है ना, अल्लाह कह रहा है मिन अंबाई, ये सारी जो वाकयात, हालात, खबरें आपको बताई है ना, ये किस लिए बना बताई है? ये इसलिए बताई है मेरे महबूब, नुसब्बितु बिही फुआदक, इससे आपके दिल को तसल्ली देने के लिए। हाय कुर्बान जाए, मैं कहती हूँ अल्लाह को कितनी अपने महबूब की फिक्र है कि मेरा महबूब परेशान होता है, उम्मत के लिए गमज़दा होता है, तो अपने महबूब को जरा हौसला देने के लिए, इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं काउंसलिंग। जैसे आप दुखी होकर बैठे होते हो ना, किसी और का दुख सुन लो तो आप कहते हैं हाय ओदा भी दुख है, मेनू जरा तसल्ली हो गई दुख सुन के, आए वो भी परेशान है, चलो अल्लाह खैर करेगा, एक दूसरे को हौसला। अल्लाह अपने महबूब को हौसला तसल्ली देने के लिए कह रहा है मैंने आपको आपके भाइयों के, नबियों के किस्से सुनाए हैं कि देखिए आपके भाइयों के साथ भी ये दुख हुए हैं, ये तकलीफें हुई हैं, उनकी उम्मतों ने भी बड़ा उनको तंग किया था, बड़ा सताया था, बड़े दुख दिए थे। तो मकसद मेरा क्या है, ये मैं सब इसलिए सुना रहा हूँ मेरे महबूब का दिल मजबूत हो। नुसब्बितु बिही फुआदक, मैं कहती हूँ केड़ा राज समझेगा कि अल्लाह कुरान पाक में अपने महबूब को जगह जगह तसल्लियां दे रहा है, मोहब्बतें लुटा रहा है, अपने महबूब पे फिदा हुए जा रहा है। तुझे क्यों गम है, मैं हूं ना तेरा, तुझे क्या परेशानी है, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तुझे हौसला देने के लिए। अल्लाह कहता है वजा का फी हाज़िहिल हक व मौइज़तुन व ज़िक्र लिल मुमिनीन, आपके वसीले से मैं ये हक और नसीहत अपने यानी कि पहुंचा रहा हूँ बंदों तक, और अहले ईमान होंगे जो इससे इबरत और नसीहत हासिल करेंगे। और आप इन लोगों से जो ईमान नहीं लाते फरमा दें कि तुम अमल करे जाओ, और अल्लाह ताला जो है तो अपनी जगह अमल करे जाओ, हम अपने मुकाम पर अमल पैरा है, यानी अल्लाह हम दोनों के अमल देख रहा है। तुम भी इंतजार करो, अल्लाह तुम भी इंतजार करो जैसे पहली कौमों का अंजाम हुआ था ना, अगर तुम नाफरमान हो तो तुम्हारा भी वही अंजाम हो जाएगा। कितनी कोई बड़ी गल है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द व इलैहि युरजउल अम्र कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह गाफिल तो है ही नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है, उसे सब खबर है। उसी पर तवक्कुल रखो, उसी का अम्र है, उसी का हुक्म है, उसी का इज़्न है, उसी की मशीयत है, उसी की रजा है, उसी की कज़ा है, उसी की
उसी की रजा में राजी रहो। आमीन। कज़ा उसकी है तो फिर रजा भी उसकी होनी चाहिए। सूरत हूद में क्या है? ये सूरत हूद में अब देखें, इसका खुलासा मुझे समझ आया। सूरत हूद में अल्लाह ताला ने कहा कि मुहकम आयात हैं, बशीर और नजीर ने दी हैं पहुंचा, सब्रो जिहाद का रास्ता दिया रब ने दिखा, काफर नबी से करता है जफा, उनके अमाल होते हैं जाया, हर नबी है सरापा वफा, हर नबी का खुदा रहनुमा, हर नबी एक ही पैगाम लाया, रिजाए खुदा इत्बाए मुस्तफा, हर नबी का हाल तवक्कुल अल्लाह। फसादियों ने नबियों को झुटलाया, फिर मिट गया उनका नामो निशान। रब इबरत के लिए किससे देता है सुना, नबी का नाफरमान कभी नहीं बचा, बड़े बड़े दौलतमंद हो गए तबाह, अल्लाह ने उनके पीछे दी लानत लगा, नेकियां बुराइयों को देती हैं मिटा, यही है रब का आखिरी फैसला। वो हमारे अमाल से कभी भी गाफिल नहीं रहा।